Hello students, today we will learn how K-map is to be prepared, how these K-maps can be used to minimize the Boolean function or logical function. First of all, these four methods can be used for simplification of Boolean function. First one is algebraic method, K-map technique, variable entered mapping technique, and Finn-Mackelsay method. Out of these four methods, first algebraic method we have already discussed in previous lectures. K-map technique we will discuss in this lecture, and these two are not in our syllabus. So main focus is on algebraic method and K-map technique. And out of these two methods, K-map is the simplest one, very easy to understand, very easy to learn. होता क्या है K-map? It is a graphical technique which provides a systematic method for simplifying and manipulating Boolean expression. Graphical technique है, सबसे main important चीज ये है. It can be used to represent or minimize the information available in the form of truth table, soft form and false form. Means हमारा जो expression है वो truth table की form में है तब भी हम K-map apply कर पाएंगे. सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है तब भी हम K-map अप्लाई कर पाएंगे. प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में है तब भी हम K-map अप्लाई कर पाएंगे टू minimize that particular logical function. Although the technique may be used for many numbers of variables, but we can easily understand, we can easily apply on apply the two variable K-map, three variable K-map, four variable K-map, and in some cases 5 variable or 6 variable, beyond which it is very difficult or cumbersome task. Now the main requirement, the first requirement to prepare K-map is that the given expression should be in canonical form. कि हमारा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो कैनोनिकल फॉर्म में होना जरूरी है. ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी हम K-map बनाने जा रहे हैं. If it is not in canonical form, it must be converted to canonical form by using Boolean answer or some other method, whichever you find suitable, whichever you find easy. वैसे तो हम कैनोनिकल फॉर्म पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर इस लेक्चर में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है. व्हाट इज कैनोनिकल फॉर्म? व्हेन ईच टर्म ऑफ ए लॉजिकल एक्सप्रेशन कंटेन्स ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. मींस चार टर्म है अगर हमारे एक्सप्रेशन में, तो चारों के अंदर सभी वेरिएबल होने जरूरी है. हाँ, वो वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी हो सकता है. दोनों में से एक फॉर्म होना जरूरी. If for example, if we have two independent variable a and b, अगर हमारा टू वेरिएबल का कोई एक्सप्रेशन है तो टू वेरिएबल के फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे एंड ऑपरेशन. a dot b means 1 1, a bar dot b means 0 1, a dot b bar means 1 0, and a bar dot b bar is 0 0. These are the four possible combination which can be used by using two independent variables. Each of these and term is called a min term. If there are three independent variables, तो क्या होगा? तो there are possible 8 possible combination. In this case 8 possible combinations are there. देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड. तीनों की वैल्यू हमने लिख दी. 0 0 0 हो सकती है, 0 0 1 हो सकती है, 0 1 0 हो सकता है, 0 1 1 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है, 1 0 1 1 0 हो सकता है, 1 1. इनकी डेसिमल वैल्यूज क्या होती है? 0 to 7. और हमारी मिन टर्म क्या बनेगी? 0 को हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं इन केस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट. एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार, एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड, इसी तरह से लास्ट एक्स डॉट वाई डॉट. और इनको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं
फर्स्ट टर्म को m0 कहते हैं, सेकंड को m1 और लास्ट को m7. These 8 terms are known as min terms in case of 3 variables. In case of 4 variable, the number of possible cases are 16. So 16 min terms can be defined. Boolean function expressed as a sum of min terms. Sum of min terms. अगर हम इन min terms को आपस में जोड़ दें किसी एक particular expression के लिए, then that canonical form is known as sum of product. Standard sum of product form. अब देखिए कुछ एग्जांपल है. एक फंक्शन है हमारा x बार y बार z, x बार y z, x y बार z, x y z. मीन्स ये क्या हो गया 001 मीन्स 1 हो गया. दिस इज 0113 हो गया. दिस इज 1015 हो गया. 135 एंड 7. तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेकंड टर्म मिन टर्म्स के केस में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. f इज इक्वल टू m1 प्लस m3 प्लस m5 प्लस m7. या हम समेशन का सिंबल यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट सम ऑफ प्रोडक्ट. m1 m3 m5 m7 समेशन 1357. इनमें से इन चारों में से किसी भी फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मिन टर्म्स. एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स. राइट. सेकंड जो फॉर्म होते हैं कैनोनिकल फॉर्म, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम. अगेन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यहां पर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन से होंगे, वहां हमने सम ऑफ प्रोडक्ट किया था, यानी कि एक जो सिंगल टर्म थी वो प्रोडक्ट फॉर्म में थी. यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो यहाँ पर जो सिंगल टर्म होगी हमारी, एक इंडिविजुअल टर्म जो होगी हमारी, वो सम की फॉर्म में होगी और की फॉर्म में. तो मैं तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन से होंगे, a प्लस बी. और एक चीज और ध्यान रखनी है हमने यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम 1 मानते हैं, और जो विदाउट कॉम्प्लीमेंट है सिंपल वेरिएबल है उसको 0 मानते हैं. तो दिस इज फर्स्ट टर्म a. This one is this one is 0 0. This one is 1 0 0 1 1. If there are 3 independent variables, 2 की पावर 3 है ये, 23 नहीं है, ये 2 की पावर 3 है. ठीक है. तो नेक्स्ट टर्म में x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 0 है, 0 को हम सिंपल वेरिएबल लेते हैं, और 1 1 1 को x बार y बार जेड, x बार प्लस y बार प्लस जेड. नाउ मैक्स टर्म है ये, दीज आर नोन एज मैक्स टर्म. और मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. m0 फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया m1, देन m2, m3, m4, m5, m6, m7. नाउ इफ एनी एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड इन product of max terms, then this is called standard product of sum. Then this is known as standard product of sum. पोस्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पोस्ट फॉर्म में. सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, कोई x प्लस वाई और डॉट x बार प्लस वाई बार. अब इंडिविजुअल टर्म हमारी क्या है, और की फॉर्म में, और इंडिविजुअल टर्म्स को हमने एंड कर दिया. सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, इंडिविजुअल जो टर्म होती है हमारी एंड ऑपरेशन की फॉर्म में होती है, और इंडिविजुअल टर्म्स को हम और करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब और करते हैं, प्लस कर देते हैं. तो दिस इज 0 0 m0 हो गया. दिस इज 1 1 m3 हो गया. तो इसको हम पाई की हेल्प से यूज करते हैं, पाई m0 m3 या पाई 0. दीज आर द 4 वेज. इनमें से किसी भी वेज तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ सम के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक चीज हमें नोट करनी है यहाँ पर, पिछले वाले में भी यहाँ पर देखो, इस एक इंडिविजुअल टर्म में दोनों वेरिएबल्स हैं, इसमें इंडिविजुअल टर्म में दोनों वेरिएबल हैं. ठीक है. तो हमने क्या कहा, कैनोनिकल फॉर्म वो होती है जहां पर हर एक इंडिविजुअल टर्म में ऑल इनपुट वेरिएबल्स हों. यहाँ पर इनपुट वेरिएबल्स हैं और दोनों प्रेजेंट हैं. लास्ट वाले में यहाँ पर इनपुट वेरिएबल 3 थे, तो इस टर्म में भी 3 वेरिएबल हैं, इस टर्म में भी 3 वेरिएबल हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है. इट मींस दीज 2 एक्सप्रेशंस आर इन कैनोनिकल. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ कैनोनिकल फॉर्म व्हेन लॉजिकल एक्सप्रेशन इज नॉट इन कैनोनिकल, तो उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे.
देयर आर मेनली टू मेथड्स, वन इज अलजेब्रिक मेथड एंड ट्रूथ टेबल मेथड। पहले अलजेब्रिक मेथड का एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है y प्लस एक्स बार डॉट वाई। इस एक्सप्रेशन को देख के हमें ये लग रहा है कि ये टू वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। सेकंड टर्म में तो दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है, बट फर्स्ट टर्म में एक ही वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल कौन सा मिसिंग है? x। तो हम क्या करेंगे, इस y को क्या करेंगे, x प्लस एक्स बार से एंड कर देंगे। तो जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो क्या हो गया, x डॉट वाई, एक्स बार डॉट वाई, एक्स बार डॉट वाई। अब हमारे पास तीन टर्म्स होंगे, बट इन तीन टर्म्स को भी हम देखें तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम है। दोनों सेम टर्म्स हैं तो हम उसको सिंगल टाइम लिख सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज x डॉट वाई, एक्स बार डॉट वाई, दैट इज दिस एक्सप्रेशन एज एन canonical form. This is how algebraic method can be used. Theorems can be used to convert non-canonical form function into the canonical form. Second method truth table वाला देख लेते हैं कैसे करेंगे। सेम एक्सप्रेशन हमने ट्रूथ टेबल के लिए भी लिया है। तो पहले तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे अपने आप। 0 0 x की y की 0 x की 0, तो ये 0 हो गया। 0 1 के केस में यहाँ 1 हो गया तो आउटपुट 1 आएगा। 1 0 के केस में देखो 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, आउटपुट 0 आ गया। 1 1 के केस में 1 0 हो गया, बना। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल डिजाइन बाय यूजिंग दिस फंक्शन। नाउ अब इस ट्रूथ टेबल में जहां जहां पर भी 1 आ रहा है उसका उसकी कंप्लीट मिन टर्म लिख देंगे हम। तो इसकी कंप्लीट मिन टर्म क्या होगी, एक्स बार वाई। इसकी कंप्लीट मिन टर्म क्या होगी, एक्स वाई। हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, एक्स बार डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट नॉन कैनोनिकल फॉर्म फंक्शन इनटू द कैनोनिकल फॉर्म with the help of algebraic method as well as truth table. Next, k map कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज एन n वेरिएबल k map टू n सेल। टू n सेल मींस 2 की पावर n है, ये 2n नहीं है, 2 की पावर n है। शायद मैं पीपीटी बनाते तो शायद इनको करना भूल गया, कोई बात नहीं। 2 की पावर n सेल्स, यानी कि अगर 2 वेरिएबल का k मैप है तो 4 सेल होंगी। 3 वेरिएबल का k मैप है तो 2 की पावर 3 8 सेल्स होंगी। 4 वेरिएबल का k मैप है तो 2 की पावर 4 16 सेल्स होंगी। Each cell correspond to one of the combination of n variables. 8 सेल हैं और तीन वेरिएबल के लिए हमने पता है हमें उसके अंदर 8 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हर एक जो सेल है वो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए अलॉटेड है, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को अलॉटेड है हम कह सकते हैं। आज कैसे है वो हम देखेंगे। Since there are 2 की power n combination of n variables, therefore for each row of truth table, for each min term, for each max term, one specific cell in R, right? Yes, very important. Gray code have been used for identification of cell. हमारी एक रिक्वायरमेंट है के मैप के केस में कि जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो हमारी उनके अंदर जो हेमिंग डिस्टेंस है वो 1 होना चाहिए। वो पॉसिबल तभी है जब हम ग्रे कोड्स को यूज करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल। ये भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा भी जब हम के मैप बनाएंगे। फॉर टर्म विच आर प्रेजेंट इन एक्सप्रेशन, यस, के मैप में जो हमारे एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग 1 लिखेंगे, और जो टर्म प्रेजेंट नहीं है उसके उसके सेल में 0 लिखेंगे। देखो 2 वेरिएबल का के मैप हमने बनाया, 4 सेल्स हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4। पहली सेल का जो नाम है हमने क्या रखा, 0 रखा। दूसरी देखो नाम यहाँ नजर आएंगे आपके, पहली सेल का नाम क्या है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3। और देखो ए की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 यहाँ पर, बी की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 यहाँ पर। तो इस सेल के लिए क्या बनेगा, 0 0 बनेगी यहाँ पर वैल्यू 0 0। तो 0 0 का मतलब क्या होता है, ए बार बी बार। यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ए बार बी। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और बी की वैल्यू क्या है, ऊपर से 0 आ रही है, इसका मतलब ए बी बार। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 1 है इसलिए ए बी लिख दिया, ठीक है। दिस इज मिनटर्म 0, मिनटर्म 1, मिनटर्म 2 एंड मिनटर्म 3।
और सिंप्लिसिटी के लिए, याद रखने के लिए हम कॉर्नर पे लिख देते हैं बिल्कुल इनके मिन टर्म का नंबर 0 1 2, ताकि जब हम के मैप जैसे 2 और 3 है, हमारा कोई एक्सप्रेशन क्या है 2 और 3 है, तो 2 और 3 है तो 2 वाले में 1 लिख दिया हमने और 3 वाले में 1 लिख दिया। दिस इज हाउ वी कैन प्लेस 1 एंड 0 इन के मैप। यहाँ पर 0 प्लेस कर देंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हम के मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे 1 1 1। दिस इज 2 वेरिएबल के मैप। नाउ 3 वेरिएबल के मैप। अब 3 वेरिएबल के मैप में 8 सेल्स हैं, तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल साइड है वहां पर हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं और वर्टिकल में एक ही है। वर्टिकल में एक है तो एक की वैल्यू क्या है 0 और 1। यहाँ देखो, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। अब यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0, that here the role of gray code is come. Here gray code plays significant role to adjust the Hampton distance 0 0 0 1। यहाँ 1 0 नहीं लिख रहे, 1 1 लिख रहे हैं और यहाँ 1 0। ठीक है, तो इस सेल में क्या होगा मिन टर्म हमारा 0 1 1, ए बार बी सी 3 होगा इसका, और इसका होगा, देखो अब ऊपर हमने क्या लिखा यहाँ 0 1, एक कॉलम छोड़ दिया अब हमने 2, फिर 4 5, एक सेल छोड़ के 6, फिर ये मेन चीज हमारे समझने की है। 0 1, उसके बाद एक सेल छोड़ के 2 लिखेंगे, फिर वापस उसमें 3 लिखेंगे, 4 5, फिर एक सेल छोड़ के 6 लिखेंगे, फिर वापस 7। और ये हमारी जो हमने नंबरिंग लिखी हुई है, कोड्स लिखे हुए 0 1 0 0, इससे भी हमें क्लियर होता है। देखो इस सेल की वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ पर भी 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 है और यहाँ से भी 1 आ रहा है, तो तीनों 1 1 है, तीनों 1 1 है, तो एबीसी एबीसी मीन 7, तो 7 सेल है। दिस इज हाउ 3 वेरिएबल के मैप कैन बी रिप्रेजेंटेड। और एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, देखो एक्सप्रेशन है हमारे पास ए बार बी सी बार 0 1 0 2 1 1 0 6 1 1 1 7 1 0 1 5 2 5 6 7। तो 2 वाले में 1 प्लेस कर दिया हमने, 5 में 1 प्लेस कर दिया, 6 में और 7। दिस इज हाउ वी कैन प्लेस ones and zeros in K map. Next, an example of 4 variable K map. अब दोनों तरफ दो दो वेरिएबल्स हैं ए बी और सी डी। दिस 0 is the value of A, this 0 is the value of B, this position is for C and this position is for D। तो यहाँ पर क्या हो गया C बार D, ये क्या है सी डी, ये क्या है सी डी बार। ठीक है, इसी तरह से ये क्या है ए बी बार। और इसके एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान रखना है बस। ये देखो 0 1, एक सेल छोड़ दिया 2 4 5, एक छोड़ के 7 6 7। फिर अब हम जब हम हॉरिजॉन्टल में एक छोड़ रहे हैं तो वर्टिकल में भी एक छोड़ना है हमने। 7 के बाद 8 जो लिखना है हमने 4th रो में लिखना है, 8 9, फिर एक छोड़ेंगे 10, वापस 11, फिर वहां पर 12 13, एक छोड़ के 14। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड की मैप, वी कैन यूज के मैप। एक्सप्रेशन हमारा क्या है समेशन 5 13 11 14 8 15, जो भी टर्म हमारे एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है वहां उसके करस्पॉन्डिंग हमने 1 1 लिखा। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट। अभी हमने केवल रिप्रेजेंटेशन किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ के मैप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन इनटू द के मैप। देखो अब एक ट्रू टेबल दी हुई है अब हमारी, अब एक्सप्रेशन ये ट्रू टेबल है। ट्रू टेबल के मैप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज 0 0 0 m0, m0 की वैल्यू क्या है 0, m1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, m2 की वैल्यू क्या है 0 है, देखो कुछ नहीं लिख रखा हमने, m3 की वैल्यू 1 है, m3 में 1 लिख दिया हमने, m4 और 5 में 1 है, 4 में 1 5 में 1, 6 और 7 में 0 है, ये 6 0 हो गया, ये 7 0। तो ट्रुथ टेबल में जहां जहां भी जिस भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए वैल्यू 0 और 1 है उस कॉम्बिनेशन वाले सेल में हम 0 और 1 लिख देंगे करस्पॉन्ड। तो चाहे एक्सप्रेशन दिया हो हमें या ट्रुथ टेबल की फॉर्म में दिया हो, हम दोनों फॉर्म से
अपना के मैप डिजाइन कर सकते हैं। अब हम उसको सिंप्लीफाई कैसे करें? इफ एन एक्सप्रेशन इज सिंप्लीफाइड टू अ स्टेज बियॉन्ड व्हिच इट कैनॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, it will require minimum number of gates with minimum number of inputs to the gate. Such an expression is referred to as minimized expression. Minimized expression कौन सा होता है? ऐसा expression जिसको हम further minimize ना कर पाए, और ऐसे expression को represent करने के लिए number of gates भी हमें minimum चाहिए होती है। Economical होता है ऐसा हमारा circuit. Simplification of logical function with K-map is based on the principle of grouping items in adjacent cell. मीन्स अब हमें क्या करना है, हमने वंस प्लेस कर दिए के मैप में, अब उन वंस की हमें ग्रुपिंग करनी है, और वो ग्रुपिंग एडजेसेंट वंस की ही हो सकती है। एडजेसेंट कहेंगे किसको? टू सेल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे डिफर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म बाय ओनली वन वेरिएबल। दो सेल जो केवल एक वेरिएबल से डिफर कर रही हैं वो एडजेसेंट। तो हमने क्या देखा, 8 की 8 सेल, पहली सेल दूसरे के एडजेसेंट है, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में भी पहली सेल दूसरे के, दूसरी तीसरी के, तीसरी चौथी। चार अगर एक साथ हैं तो चारों एडजेसेंट हैं। चार कॉर्नर जो है हमारे वो भी एडजेसेंट है, टॉप रो और बॉटम रो एडजेसेंट है, लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम एडजेसेंट है। तो दिस इज हाउ वी कैन define the adjacency of two cells if there is a difference of Hamming distance 1, then these two cells are adjacent. प्रिपेयर करेंगे कैसे? देखो, पहला, place the ones in the K-map for the terms which are present. हमने क्या करना है, वंस प्लेस करने हैं जहां जहां पर भी जो जो टर्म हमारे एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, और प्लेस द जीरो इन द K-map for the terms which are not present. जो प्रेजेंट, जो टर्म प्रेजेंट है उसकी जगह 1 रखना है, जो प्रेजेंट नहीं है उसकी जगह 0 रखना है K-map में। Try to identify ones which can contribute in a group of maximum number of ones. We have to make group as less as possible. ग्रुप का साइज मैक्सिमम हो बट नंबर ऑफ ग्रुप्स कम। ठीक है, दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, जितने भी हम ग्रुप बनाए, ट्राई टू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ ग्रुप बट मेक्स द ग्रुप minimum number in minimum number. In case of 4 variable K map, first check the group of 16. सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि 16 का कोई ग्रुप है या नहीं है। फिर हम चेक करेंगे 8 वंस का कोई ग्रुप बन रहा है क्या, 8 एडजेसेंट वंस का बन रहा है तो उसको सर्कल कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। फिर हम चेक करेंगे 4 वंस का कोई ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है तो सर्कल करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। फिर हम चेक करेंगे 2 वंस का कोई ग्रुप बन रहा है क्या नहीं बन रहा तो उसको सर्कल कर, यानी कि हमें रिवर्स में अगर हम चेक करेंगे तो हमारा मैक्सिमम साइज के ग्रुप्स हम निकाल पाएंगे, पहले 16 का, फिर 8 का, फिर 4 का, फिर 2 का। अगर 3 वेरिएबल का के मैप है तो पहले 8 का चेक करेंगे, फिर 4 का, फिर 2 का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वंस व्हिच कैन नॉट बी ग्रुप। कुछ ऐसे वंस भी हो सकते हैं जो किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाते, उनको भी हमें रिकॉग्नाइज करना है, उनको भी सर्कल करना है, सिंपल। After identifying the essential groups 2, 4, 8 ones, if there are some ones remained as uncircled, then try to make a groups with ones already in some other groups. अगर कोई ऐसा ग्रुप बच गया जो अकेला है बट वो दूसरे किसी ऐसे वंस के साथ ग्रुप बना सकता है जो ऑलरेडी किसी और ग्रुप में है, तो हम उसको ग्रुप में ऐड करेंगे, उसके लिए एक नया ग्रुप हम बनाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक जो वन है अकेला वो एक ही ग्रुप में शामिल होगा, नहीं, वो एक से ज्यादा ग्रुप्स में शामिल हो सकता है। One should remember that one can be included in any number of times without affecting the expression. Simplified logic expression obtained from K-map may not be unique. कई बार होता है हमारे K-map में कि मल्टीपल टाइप्स के ग्रुप बन जाते हैं, मींस सेम वंस दो अलग अलग तरह के ग्रुप बना सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने एक्सप्रेशन निकाला वो ही फाइनल है, उसके इक्विवेलेंट भी और एक्सप्रेशन हो सकते हैं।
ठीक है। फोर कॉर्नर्स, हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, फोर कॉर्नर्स का भी एक ग्रुप बनता है। इफ ए के मैप है वन इन ऑल द सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं 16, फोर वेरिएबल के मैप में अगर 16 सेल्स हैं और सभी में वन है तो उसकी आउटपुट वन हो। थ्री वेरिएबल के मैप में 8 सेल्स हैं, अगर सभी में वन है तो उसकी वैल्यू वन हो। फॉर टू वेरिएबल में 4 सेल्स हैं, अगर सभी में वन है तो उसकी वैल्यू वन। Simplification of logical function is achieved by grouping of adjacent ones in case of top form and grouping of zeros in post form. अगर हमारा एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हम वन की ग्रुपिंग करेंगे, अगर हमारा एक्सप्रेशन पोस्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में है, तो हम जीरो की ग्रुपिंग करेंगे। राइट, ये ध्यान रखना है बस। एग्जाम्पल है, देखो, मिनिमाइज द फोर वेरिएबल के मैप 0 1 2 3, 0 1 2 3 5 7 8 9 11 और 14। अब हमने के मैप बना लिया, ठीक है, वन को लिख लिया। अब ग्रुपिंग करनी है हमने। सबसे पहले हम 16 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा, 8 का ग्रुप देखते हैं बन रहा है क्या नहीं बन रहा। यहाँ पर 4 है वंस, यहाँ 3 है, नहीं बन रहा है 8 का। फिर हम 4 का ग्रुप बनेंगे। देखो 4 का ग्रुप कैसे बनेगा, एक ग्रुप तो 4 का ये बन गया हमारा, दो तो ये वन और दो ये, ठीक है। एक 4 का हमारा क्या बनेगा, इस ये वन अकेला रह गया, एक 4 का हम ये बनाएंगे, दिस वन, एक 4 का ये बन गया, एक 4 का ये बन गया। अब ये दोनों अकेले हैं 5 और 7 में, तो 5 और 7 का हम दो का ग्रुप बना सकते हैं, बट हमने क्या करना है, ग्रुप का साइज मैक्सिमम रखना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों को इनके साथ मिला के 4 का ग्रुप बना देंगे। हमने क्या किया, 4 का एक ग्रुप, ठीक है। अब ये अकेला वन बच गया। अब इसको देख के हम क्या करते हैं, इसका क्या करेंगे, हम इसका भी एक 4 का ग्रुप बनाएंगे, किसके साथ, इन चारों के साथ। ये हमारा 4 का ग्रुप, ये अकेला बच गया वन, इसका कोई ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि उसके ऊपर नीचे आजू बाजू कुछ नहीं है, तो हम इसको सिंगल। अब देखो वैल्यूज कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूज कैसे लिखेंगे। एनसर्कल 1 इन 14, 14 का कोई ग्रुप नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 14 के लिए ए और बी की वैल्यू क्या है, दिस ए और बी की वैल्यू 1 1 है और सी और डी की वैल्यू क्या है 10 1 0 है। तो 1 1 1 0 1 1 1 0 क्या हो गया, ए बी सी डी का, सिंपल है। इस सेल की 14 की वैल्यू जो है वो एज इट इज आ रही है क्योंकि ये ग्रुप में शामिल नहीं। अब ग्रुप ऑफ 8 क्या नॉट, ग्रुप ऑफ 4 0 1 2 3, देखो एक हमने ग्रुप बनाया था ये 0 1 2 3 का, एक हमने ग्रुप बनाया था 0 1 2 3 का। अब हमें क्या देखना है, इसमें कॉमन वेरिएबल्स निकालने हैं हमने, इन चारों के लिए कौन से वेरिएबल कॉमन है, सेम है जिनकी वैल्यू, इन चारों के लिए ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है, करेक्ट है ना। चारों के लिए ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, इसलिए 0 0 कॉमन हो गया। सी की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, डी की वैल्यू यहाँ 0 1 1 0, यानी कि ए और बी की वैल्यू सभी के लिए सेम है, सी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, डी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो जो वैल्यूज चेंज हो रही है उनको हम छोड़ देंगे, जो वैल्यू कॉमन है उनको हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया, ए बी की 0 0 0 0 मीन्स ए बार बी बार। तो दिस इज द वैल्यू फॉर ग्रुप 0 1। सेकेंड ग्रुप हमारा बना 0 1 8 9, ठीक है। 0 1 8 9 के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, छोड़ देंगे इसको।
बी की वैल्यू यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। इसका मतलब क्या होगा, बी बार हमारा कॉमन होगा। और अब इन दोनों सेल्स के लिए यहाँ देखो, सी की वैल्यू जीरो है दोनों में, तो सी बार कॉमन हो गया, बी बार सी बार। डी की वैल्यू यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, चेंज हो गई। तो हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई, बी बार सी बार। थर्ड ग्रुप हमारा क्या बना, 1357, 1357। इसकी वैल्यू देखो, ए की वैल्यू यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यानी कि ए बार कॉमन हो गया। बी की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ जीरो यहाँ वन। सी की वैल्यू यहाँ जीरो है और यहाँ वन है, चेंज हो गई। डी की वैल्यू दोनों में सेम है, डी है वन। तो सी बार, सॉरी ए बार डी हमारी इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब हमारा क्या रह गया, एक ये रह गया 13911, 13911। टॉप मोस्ट रो, बॉटम रो, जीरो वन चेंज हो गया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। इसका मतलब बी बार कॉमन हो गया, और यहाँ से क्या कॉमन हो गया, डी कॉमन हो गया। सी की वैल्यू चेंज हो रही है, डी कॉमन हो गया, तो बी बार डी हमारा आंसर आ गया इसका। तो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मिनिमाइज ए बी सी डी बार, ए बार बी, ए बार डी, बी सी, बी सी बार, डी बार। This is how we can write the value, write the expression for a proof. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ट्रूथ टेबल का एग्जांपल है हमारे पास। ट्रूथ टेबल में जहां जहां भी वन आया वहां वहां हमने के मैप में वन लिख दिया। अब इसकी ग्रुपिंग करनी है। 16 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा है इसमें, 8 का ग्रुप बन रहा है। देखो कैसे बनेगा 8 का ग्रुप। चार ये वाले और चार ये वाले, इनका हमारा 8 का ग्रुप बन गया। पहले इस 8 के ग्रुप की वैल्यू लिख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो। अब देखो क्या चीज कॉमन है इन सब में, ए की वैल्यू यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, चेंज हो गई, छोड़ देंगे। यहाँ ए की बी की वैल्यू जीरो है, यहाँ भी बी की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब सभी जो 8 वन है हमारे, उनमें जी बी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो बी बार हो गया। और इन चारों में सी की वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है बारी बारी, और डी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना इसका, B। ठीक है, क्लियर है ये। अब तीन ग्रुप में तीन बच गए, वन वन वन। तो इन दो वंस को यूज करके हम एक ग्रुप बना सकते हैं, ये वाला चार। इसकी वैल्यू देखो क्या, ए की वैल्यू यहाँ भी वन, बी की यहाँ भी वन, तो ए कॉमन हो गया हमारा, बी चेंज हो रहा है, यहाँ वन है यहाँ जीरो, छोड़ देंगे। यहाँ पर सी की वैल्यू जीरो, यहाँ भी सी की वैल्यू जीरो, सी बार। तो क्या हो गया, ए सी बार। डी की वैल्यू ना चेंज। ठीक है ना, एक अकेला एक बच गया ये, इसका ग्रुप बन सकता है कहीं, चार का नहीं बनेगा, आठ का नहीं बनेगा, दो का ग्रुप बनेगा इसका। इसका हम दो का ग्रुप बनाएंगे। इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, ए की वैल्यू सेम है, ए बार है, बी चेंज हो गया, छोड़ देंगे, ए बार सी डी। तो ए बार सी डी इसकी वैल्यू। दिस इज हाउ वी कैन मेक ग्रुपिंग एंड राइट देयर वैल्यू। ये चीज हमें ध्यान नोट करनी है यहाँ पर, जब हम आठ का ग्रुप बना रहे हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें सिंगल वेरिएबल है। जब हम चार का ग्रुप बना रहे हैं तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें दो वेरिएबल्स हैं। जब हम दो का ग्रुप बना रहे हैं तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें तीन वेरिएबल। इन केस ऑफ 8 वेरिएबल, सॉरी 4 वेरिएबल की। सिंप्लीफाई z इज इक्वल टू ए बार बी बार ए डॉट बी बार। दो ही वेरिएबल का की मैप है हमारे पास, और दो का ही हम ग्रुप बना रहे हैं। दो का ग्रुप बनेगा हमारे, वैल्यू क्या आएगी देखो, ए की वैल्यू यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, चेंज हो गई, छोड़ देंगे। यहाँ क्या है, डी जीरो है दोनों के लिए, बी बार। आंसर हमारा क्या होगा, इन केस ऑफ टू वेरिएबल के।
टू वेरिएबल है इसलिए आउटपुट में एक वेरिएबल आ गया, ठीक है। एक्सप्रेशन अब हमारे पास ए बार बी सी बार, जीरो वन जीरो टू, वन वन जीरो सिक्स, टू हो गया, सिक्स हो गया, वन जीरो वन फाइव हो गया, वन वन सेवन। अब देखो कितने ग्रुप बनेंगे, चार का, आठ का कोई ग्रुप नहीं बन रहा, चार का ग्रुप नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, हम दो का ग्रुप बना दिया हमने, एक और एक हमने ये दो का बना दिया। अब कोई भी हमारा एक ऐसा वन नहीं है जो ब्लैंक है, तो हमारे दो ही ग्रुप बनेंगे। अब इस वाले ग्रुप में देखो कॉमन क्या है, ए कॉमन है दोनों में, और यहाँ से बी चेंज हो गया, सी कॉमन, ए सी, एक सी आ गई। इस ग्रुप की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए चेंज हो गया, यहाँ जीरो यहाँ वन है, यहाँ क्या आ गया, बी सी बार, तो इसकी वैल्यू आ गई बी। नेक्स्ट एग्जांपल, कौन कौन से वेरिएबल है हमारे पास, सॉरी टर्म्स हैं, जीरो टू फोर फाइव सिक्स, जीरो हो गया, टू हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया और सिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो कितने का ग्रुप, एट का ग्रुप नहीं बन रहा, फोर का ग्रुप, फोर का ग्रुप बन रहा है हमारा, बस तो ये, इसकी आउटपुट बताइए क्या होगी। ए की वैल्यू क्या है, जीरो, एक में जीरो एक में वन है, चेंज हो गई, छोड़ देते हैं। बी की वैल्यू यहाँ भी जीरो है, यहाँ पर वन है, चेंज हो गई, छोड़ देंगे। सी की वैल्यू क्या है, यहाँ जीरो है और यहाँ जीरो, दोनों में सेम है, चारों में, इसका मतलब सी बार। इसकी आउटपुट क्या आएगी हमारी, ये अकेला एक बच गया, इसका चार का नहीं बन रहा, इसका दो का बनेगा, हम दो का बना देंगे। आउटपुट क्या आएगी, ए की वैल्यू कॉमन है दोनों में, ए, और इधर से बी बार कॉमन है, ए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा थ्री फोर सिक्स सेवन, थ्री फोर सिक्स, एक ग्रुप हमारा ये बनेगा और एक ग्रुप हमारा, आउटपुट क्या आएगी हमारी, इस ग्रुप की आउटपुट बताओ जो, ए की, ए कॉमन है और इधर से बी, इधर जीरो है इधर वन है, चेंज हो गया, सी बार, सी बार, यहाँ भी सी बार है यहाँ भी सी बार है, तो ए सी बार, ए सी बार हो गया इसके आउटपुट। इसकी यहाँ ए जीरो यहाँ वन चेंज हो गया, छोड़ देते हैं, ये दोनों कॉमन है, यानी कि दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। फोर का, फोर वेरिएबल के मैप, एक और एग्जांपल हमारे पास, जीरो वन टू, जीरो वन टू, एट नाइन टेन, एट नाइन, कितने ग्रुप बनेंगे, आठ का कोई ग्रुप नहीं बन सकता, चार का ग्रुप बन रहा है हमारे पास, एक चार का ये बन गया और एक, इसके आउटपुट बताइए क्या आएगी। ए की वैल्यू जीरो और वन चेंज हो गई, यहाँ बी की वैल्यू जीरो है, ये भी जीरो है, यानी कि बी बार कॉमन है, यहाँ से सी बार कॉमन है, तो एक आउटपुट हमारी क्या आ गई, बी बार। एक ग्रुप हम क्या बनाएंगे, चार कॉर्नर का ग्रुप बनाएंगे हम। चार कॉर्नर के ग्रुप में आउटपुट देखो क्या आएगी, ए की वैल्यू यहाँ जीरो यहाँ वन, जीरो जीरो, बी की वैल्यू जीरो जीरो है, इसका मतलब बी बार कॉमन है, और यहाँ से डी बार कॉमन है, यहाँ भी जीरो है डी की वैल्यू, यहाँ भी डी की वैल्यू जीरो है, तो बी बार डी बार ऐसा। और जितने भी टर्म्स आ गए उनको हम और करते हैं, इसलिए हम बीच में प्लस लिख रहे हैं सभी टर्म्स। नेक्स्ट, अब ये तो हमने सारे जितने भी किए सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में किए, कॉस फॉर्म को कैसे करेंगे, कॉस फॉर्म में हम क्या करेंगे, जीरो का ग्रुप करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, फोर सिक्स टेन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन, फोर वाली जगह जीरो है, सिक्स में जीरो है, ट्वेल्व में, थर्टीन में, फिफ्टीन में और टेन में जीरो। अब जीरो की ग्रुपिंग करनी है हमने, ठीक है। चार का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा, 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, एक ग्रुप ये बनेगा
ए ग्रुप ये बनेगा 4 और 6 का। अब ये जीरो अकेला बच गया। देखो अभी हमने बात की थी, इस जीरो को हम इसके साथ भी ग्रुप कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। तो अगर हम दो अलग अलग तरह की ग्रुपिंग करेंगे तो दो मिनिमाइज एक्सप्रेशन बनेंगे हमारे, तो वो हमने इसके साथ कर दिया। ये अकेला जीरो बच गया, इसको कोई ग्रुप नहीं बनता। तो अब इसकी वैल्यू देखो क्या है कि कॉमन क्या है, जीरो बार कॉमन है, बट ये भी ध्यान रखना पॉज फॉर्म है। जीरो मीन सिंपल वेरिएबल होता है, वन मीन्स कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि ए और डॉट नहीं लगेगा टर्म्स के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में प्लस लगेगा, ए प्लस बी बार। ठीक है, ए प्लस बी बार हो गया ये। और यहाँ से क्या कॉमन है, जीरो, डी की जी जीरो, यानी कि ए प्लस बी बार प्लस डी, ए प्लस बी बार प्लस डी, ये आ गई टर्म हमारी। उसके बाद दो इंडिविजुअल टर्म्स को हम ऐड करेंगे। इसका देखते हैं 12 और 13 का, ये कॉमन है ए बार प्लस बी बार, और यहाँ से क्या कॉमन है, सी, ए बार प्लस बी बार प्लस। इस ग्रुप के लिए ए बार बी बार कॉमन है, ए बार प्लस बी बार, और यहाँ से डी बार कॉमन है। ये अकेला जीरो बच गया, तो अकेले जीरो की वैल्यू क्या है, ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस। दिस इज हाउ we can write, we can minimize an expression in cost, right? एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, ये तो वैसे सॉप और कॉस्ट फॉर्म के का ही एक, हम कह सकते हैं, याद रखने लायक पॉइंट है कि मीन टर्म इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैक्स टर्म। जो एक्सप्रेशन मीन टर्म में है और उसके अंदर जो जो टर्म्स हैं, अगर उसको हम मैक्स टर्म में कन्वर्ट करें तो जो टर्म वहां नहीं थी वो दूसरी टर्म मैक्स टर्म में आ जाएगी। सपोज हमारे पास क्या था, एफ ए बी सी डी था, मीन टर्म में हमारे पास ये टर्म्स थी, तो इसका इक्विवेलेंट मैक्स टर्म ऑपरेशन कौन सा होगा, 0 1 2 3 4, 4 आ गया, 5 इधर छोड़ देंगे, 6 4 6 10 12 13 15, 4 6 10 12 13 15, right? This is how we can minimize pause expression. Don't care condition होती है हमारे पास, we have to enter 1 or 0 in k-map corresponding to a particular term, so for pause term. बट कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी टर्म की वैल्यू चाहे हम 0 लिख दें चाहे 1 लिख दें, उससे हमारे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। There are cases in which certain combination of input do not occur. मतलब क्या है कि वो जो टर्म्स हैं हमारे इनपुट कॉम्बिनेशंस में है ही नहीं, तो उन ऐसी टर्म्स की जगह हम डोंट केयर रख सकते हैं, और डोंट केयर जहां पर भी हमने फिल कर दिया उसको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ग्रुपिंग में यूज कर भी सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। देखो कैसे, डू नॉट मैटर, it is left to him whether to assume 0 or 1 as output for each of these combinations. हम उसको छोड़ भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। ले रहे हैं तो हम क्या मान रहे हैं, 1 है, और छोड़ रहे हैं तो हम क्या मान रहे हैं, 0 है। दिस कंडीशन इज नोन एज डोंट केयर। और डोंट केयर को हम एक्स क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल, f is equal minimize f abc summation of 0 to 6 तो हमारे मेन टर्म्स हैं, और डोंट केयर क्या है, 1 3 5, तो 1 3 और 5 की जगह हमने क्रॉस लगा दिया, और 0 2 और 6 की जगह 1। अब देखो, अब यहाँ हमने 1 को लेके, डोंट केयर को लेके 4 का ग्रुप बना दिया, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है हमने जहां तक भी पॉसिबल हो, और एक ग्रुप हमारा ये बन गया 1 से लेके 1 तक 2 का, एक ग्रुप 2 का बन गया और एक 4 का बन गया। ये क्रॉस हमने छोड़ दिया क्योंकि इसका ग्रुप में कोई यूज नहीं हो रहा, डोंट केयर है, हम छोड़ सकते। तो इस 4 वाले का आउटपुट क्या आएगा हमारा, ए कॉमन है, यानी कि ए बार कॉमन है, बस ए बार आ गया इसका आउटपुट। और इस ग्रुप के लिए ए चेंज हो गया, यहाँ 0 या 1 है, छोड़ देंगे, बी सी की वैल्यू सेम है, बी सी बार,
एक और एग्जांपल है हमारे पास 1 3 7 11 15 तो हमारी मेन टर्म्स हैं, मेन एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं। डोंट केयर हमारे पास 0 2 5 है। तो देखो 1 में 1 लिख दिया हमने, 3 में 1 लिख दिया, 7 में 1 लिख दिया, 11 में 1 लिख दिया, 15 में 1 लिख दिया, और 0 2 और 5 में डोंट केयर। तो एक तो हमारा ग्रुप बन गया 1 1 को मिला के, ये वाला। अब एक अकेला 1 बच गया, इसको हम इसके साथ भी ग्रुप कर सकते थे, बट हमें मैक्सिमम साइज का बनाना है अगर पॉसिबल है, तो हमने इसीलिए इसका 4 का ग्रुप। तो दो ग्रुप 4 के बने। जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसके आउटपुट देखो क्या होगी, यहाँ ए और बी की वैल्यू चेंज हो रही है, बट सी और डी की वैल्यू सेम है, सी डी। तो सी डी आ गया आउटपुट हमारा। इस 4 वाले ग्रुप में क्या होगा आउटपुट हमारा, इधर से ए बार कॉमन है और इधर से डी कॉमन है, तो ए बार। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द, वी कैन यूज के मैप। मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल फंक्शन नॉट स्पेसिफाइड इन मिन टर्म। अगर कोई हमारे पास मिन टर्म में नहीं है, फिर हम उसको कैसे सॉल्व करें, ये आपके लिए मैं एक एग्जांपल देके छोड़ रहा हूँ। हमारे पास टर्म है दिस ए बी सी बार डी, ए बार बी सी डी, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी डी बार, ए सी बार, ए डॉट बी बार सी डी बार। ये टर्म कंप्लीट है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कंप्लीट है। इसमें क्या मिसिंग है, डी मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, डी प्लस डी बार से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, सी मिसिंग है, हमने क्या किया, सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करें। इसमें दो मिसिंग है, बी और डी, तो बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई, डी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई। इसमें भी सी डी, इसमें एक ही मिसिंग है डी, तो डी प्लस डी बार से मल्टीप्लाई। इसमें तीन टर्म्स मिसिंग है हमारी, तो ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई, सी प्लस सी बार से, डी डी प्लस डी बार से मल्टीप्लाई। राइट। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, इसको सोल्व करना आप अपने आप ट्राई करना है इसको, और जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया, जो टर्म्स हमारी फाइनल आई 13 7 1 0 2 12 9 8 11 10 और इसका ये के मैप हमने डिजाइन किया। एक हमारा 8 का ग्रुप बन रहा है इसमें, एक हमारा 4 का ग्रुप बन रहा है इसमें, और एक हमारा 2 का। ये हम कर चुके हैं अभी पहले एग्जाम्पल में, सिंपल। तो ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि अगर कोई मिनिमम कोई हमारा एक्सप्रेशन कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, फिर हम उसको कैसे सॉल्व करें। दिस इज द मेथड विद द हेल्प ऑफ algebraic method. This is all about K-map, how to prepare the K-map, how to minimize the function using K-map. Thank you.